It's day 3 of my cycling trip. मेरे इस साइकिल अभियान के कुछ उद्देश्य हैं। लोगों ने सुना होगा कि आजकल लद्दाख के लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको संविधान की 6ठी सूची में सम्मिलित किया जाए ताकि वो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की प्राकृतिक संपदा पर स्वयं निर्णय ले सकें। मैं साइकिल चलाकर उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। It's almost a plain, good road, and the distance is also not much. So I won't be in a hurry. द्रास is the second coldest place in the world. I was talking to the local people here. They told me that during winters there is almost 20 feet of snow, and almost the whole of city and the villages get picketed. Only a few stay here. They stop their provisions for November, and people come back here in the month of April, May, and they cultivate their fields, sow seeds, mainly wheat. I think it could be all downhill today. Yesterday, after seeing the war memorial, I reached my hostel at about 7 p.m. It was a hostel for bikers only. I asked him to prepare dinner, and I was very hungry because I could not find anything suitable for me on the way. So other guests also arrived, and he started cooking at about 8 o'clock, and I had my dinner at 11 o'clock. Generally, I take my dinner by 7:30 and go to bed by 9. So I could sleep at about 12 o'clock, and today I could not start very early. There was no facility of breakfast at the hostel in Taras. I'm hungry and looking for some eatery to have breakfast or brunch, because spending time at a restaurant is not advisable. I should spend more time in the nature.
conflict in a village in Anantnag. When on 26th I arrived in Kashmir, I stayed for the night with him. His wife, she is so good. She gave me some rotis laden with the home butter, cow butter, and I did not throw them. Now today I haven't found any restaurant or any stall to have my breakfast. I was feeling hungry and it was becoming difficult to ride. I took out from my pouch the chapatis and I'm eating them now. They are so tasty because when you are hungry, everything is tasty. Khasgam village or Khasgam village, small village. These are fully grown willows. Islam is the main religion here in this area. It's under Kargil district and there is no conflict between Buddhism, which prevails in Leh and its surrounding areas, and Islam, which is dominant in Kargil and Kashmir. मौसम में चेंज आ गया ना, इसलिए आया होगा। पता आप लोगों को क्यों आया? मौसम में बदलाव क्यों आया? मौसम में बदलाव दरख्त ज़्यादा हो गया इसलिए मौसम में चेंजिंग आया। दरख्त ज़्यादा हो गए, दरख्त से तो बर्फ ज़्यादा पड़ेगी। ये जो ट्रैफिक हो गया ना, धुआं, इससे पोल्यूशन हो गया और हवा जो है उसके अंदर गैस मिल गई ज़्यादा और वो गैस गर्मी को सोख के रखती है, उसको ठंडा नहीं होने देती हवा को। सूरज की गर्मी को ना वो कंबल का काम करती है, ऊपर चढ़ जाती है ना, तो नीचे तो गर्मी आ गई पर वो ऊपर नहीं जाती। फिर जैसे सूरज की किरणें आई तो वो फिर वापस भी जाती हैं, किरणें तो नहीं जाती पर गर्मी वापस चली जाती है। लेकिन ऊपर कंबल उड़ा दिया बहुत बड़ा, फिर कैसे जाएगा? आप गर्मी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़ते हो तो जो गर्मी है शरीर की निकलती नहीं फिर। तो इसलिए अब ये सिर्फ ट्रैफिक से नहीं, हम बिजली बनाते हैं कोयला फूंक के, बहुत ज़्यादा कोयला फूका जाता है, तो फिर वो भी अब यूँ थोड़ा है भाई बिजली बन रही है 150 किलोमीटर दूर और आपके गांव में गर्मी कैसे हो जाएगी? नहीं, हवा तो सब जगह आ रही है ना। अगर अमेरिका में भी अगर कोयला फूका जा रहा है तो वो भारत में भी आ रही है हवा, ठीक है ना। तो इसलिए गर्मी बढ़ गई, इसलिए बर्फ़ कम पड़ती है, इसलिए मैं साइकिल चला रहा हूँ ये ताकि गर्मी न बढ़ाऊँ, है ना। ये तो धुआं तो छोड़ते नहीं, सही बात है ना। और गाड़ियाँ कम यूज़ करनी चाहिए सभी को। अच्छा, तो सब अमन चैन रहता है 500-600 तक। तो गांव में कैसा माहौल? अमन चैन है, प्यार प्रेम है? बिल्कुल प्यार। अच्छा, हमारे उधर नीचे तो बहुत झगड़े होते हैं। झगड़े होते हैं, यहाँ के झगड़े यहाँ नहीं मतलब नहीं। अच्छा, थैंक यू भाई। मैं I have come from this side and going this side.
BRO has done a wonderful job. See the bridge, so beautiful. See below, a stream, small stream is coming down from the snow-covered peaks. Kashmir and Ladakh, they are known for their good quality water, and I would say this is the real mineral water. I have been drinking from a tap here, not buying any bottles. This water is better than bottled water. डाउन हिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है और जो उंगलियां हैं वो ब्रेक पर रहनी चाहिए, नहीं तो लालच में ऐसा एक्सीडेंट होता है कि आदमी साइकिल पर चढ़ने का नाम भूलेगा। डाउन हिल ज़्यादा मुश्किल है, अप हिल तो आराम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं यहाँ चाहिए अलर्टनेस, पूरी सावधानी। मैंने इसलिए वीडियो बना लिया कि थोड़ा बढ़िया लगता है स्पीड से चलो ना, और रोड का भी कितना बढ़िया रोड बनाया हुआ है, ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। नीचे दरास नदी और दो सरदार जी मिले थे मुझे यंग, थोड़ा पीछे वो पूछताछ करने लग गए थे आप आर्मी में हो। मैंने कहा भाई आर्मी में तो नहीं हूँ, पर आर्मी जैसे काम कर रहा हूँ मैं। There are donkeys on the opposite hill. They are very small in size. If they are big enough, they cannot climb the hills. See the beauty. ये जो म्यूजिक है, इससे बढ़िया म्यूजिक क्या होगा। और ये जब से मैं श्रीनगर से चला हूँ, पूरे रास्ते
मेरे साथ ही बस का रास्ता। If you have eye for beauty and ear for the music of nature, there is no parallel to the joy it gives you. See the meeting of two rivers. इंडिया में इसको संगम कहते हैं और यहाँ तो ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, नहीं तो होता ही है किसी हिंदू एरिया में तो यहाँ तो मंदिर बन जाता है, पूजा करने लग जाते संगम में। पवित्र संगम है ये, स्वर्ग में ले जाएगा। और ये देखिए ये कितनी बड़ी नदी बन गई है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये अब आगे जाके कारगिल में सुरू नदी के अंदर मिल जाएगी और सुरू जो है वो पाकिस्तान में जाके इंडस नदी के अंदर मिल जाती है। देखिए भाई ढलान है, ढलान है, साइकिल के ब्रेक नहीं लगेंगे, सीधा मुद्दा पड़ा पवेगा। ध्यान रख के कदे नज़ारे देखते जा। Shooting stone area. It has been rightly written at the rock. So as I was telling, there is a weathering effect during summers because of heat. The rocks expand, and during freezing winters they contract and cracks form. I think it's a small apricot garden planted on the hill flank right on the bank of the Dras river. अब पूछो। हरियाणा के किस जगह से आए हो? मैं हरियाणा में चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ चंडीगढ़ सुना है? हाँ। हाँ। उधर एक क्या नाम है, एक यूट्यूब चैनल है वहाँ का फून जोन। हाँ अच्छा अच्छा, वो देखते हो आप लोग? उसको मैंने पता कहाँ है। पर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। क्या नाम है? फैसल अब्बास। फैजल अब्बास। क्लास 7। आपका क्या नाम है? मुरसलीन। मुरतलीन मुरी। मुरी। आप भी 8th में पढ़ते हैं? 7th में। और तुम्हारा क्या नाम है? तनवीर। तनवीर 9th में हो? देखो 7th ना ना 9th में हो। मैंने कहाँ तक पढ़ा है? तीनों फ्रेंड तो? ये मेरा सगा भाई है। अच्छा ये सगा भाई। ये फोपी जाते हैं। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा। मैं हरियाणा से, चंडीगढ़ से। कब निकले थे वहाँ से? अभी मैं श्रीनगर से शुरू किया साइकिलिंग तो, और श्रीनगर से आज 3रा दिन है। रोड कैसा था? रोड बस जोजिला पास पे तो गंदा सा था, बाकी अच्छा है। आपने साइकिल चलाया? ये तो बहुत अच्छा है। मतलब जोजिला पास में आपने साइकिल चलाया? हाँ चलाया। डर नहीं लगा पहाड़ों के नीचे से? ना डर नहीं लगता मुझे, डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखो बस। आपकी एज कितनी है फिर? हैं? एज है? मेरी एज, मैंने 69 कंप्लीट कर लिया, 70th ईयर है मेरा। 69 की एज में आप मुझे साइकिलिंग कर रहे हो? मैं साइकिलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, नहीं हूँ। आपके साथ ही कुछ नहीं है आपके साथ? हैं? मेरे साथ कोई नहीं है अभी तो, इस बार मैं अकेला आया, वैसे तो साथी आते थे। आप यूट्यूब चैनल का नाम बताना। यूट्यूब देश DESH से मिलेगा, देश व्लॉग्स। अभी 2 महीने बाद आ जाएगा, 1 महीने बाद आ जाएगा, ठीक है? कितने चैनल बनाया नहीं है आपका? हैं? चैनल बना नहीं है? चैनल अब बनाऊंगा मैं जाके इस बार। आप लद्दाख में कितने बार आए हो? मैं 3री बार आया हूँ लद्दाख। मतलब जब आपने साइकिलिंग करके आए थे? पहले भी साइकिलिंग करके आया था, जब मनाली आपने से फर्स्ट टाइम लद्दाख ट्रेवल किया तो आपको कैसा लगा? मुझे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश है। इस दुनिया का तो हेवन ऑफ द वर्ल्ड वो है, क्या नाम? कश्मीर है। कश्मीर की खूबसूरती अपनी है,
लद्दाख की खूबसूरती अपनी है। ये जो आप मनाली से और ले आओ ना, तो पहाड़ इतने खूबसूरत है, कभी बड़े होके देखना। इधर भी देखो। पासिंग थ्रू चन्नीकुंड विलेज, ब्यूटीफुल विलेज, ग्रीन, पीपल आर नाइस हियर। Army area. I think I should switch off the camera. But nowhere it was written that photography is prohibited. Beautiful. Fields dotted with apricot trees. Defense personnel. कौन सा गांव है ये गांव कौन सा है? चन्नीकुंड। ये तो बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, आप ये क्या बेच रहे हो? पानी। अभी तो ये छोटी छोटी है, ये पिछले साल की है, सुखाई हुई है। ये छिलका है इसके ऊपर। कितने का बेच रहे हो एक? हैं? 300 रुपये का एक है। 1 किलो है? आधा किलो 300 रुपये का। अच्छा लगा। और ये क्या है? ये खुबानी का तेल। खुबानी का तेल। अच्छा, जो अंदर गिरी निकलती है उसका तेल है ये। बाइक पे कहाँ पे? साइकिल पे। हरियाणा से? नहीं, श्रीनगर से। किस टाइम चले थे सुबह? नहीं, मैं अभी तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द्रास टुडे। नाइन्थ में तीनों गांव से आते हो? कौन सा गांव? अच्छा, गाने गाने बोल। हाँ, काफ़ी वहाँ तो इसके एप्रिकॉट के बाग थे। दिस इज Kargil city. End of my 3rd day's Kashmir Ladakh cycling trip. I am about to reach my hostel, and on my left is the Suru river.